So now see the next question. Next question है हमारे पास क्या है? It is a 2 by 2 matrix and here we have is the matrix of order जिसकी 2 rows हैं और 3 columns हैं. अब देखिए इसको हम प्रीवियस की तरह सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ भी हम सिंपली इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. और सेकंड चीज कि यहाँ पे ये जो इक्वल के दोनों साइड पे मैट्रिसेस हैं दे आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस अगर तो भी हम उसी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटिटीज को इक्वेट करके आंसर्स निकालने से पहले हमने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया. सो वी सिंपली कॉल इट एज सी ए इज इक्वल्स टू बी. फ्रॉम हियर वी हैव ए इज इक्वल्स टू सी इनवर्स ऑफ बी. नाउ सी इनवर्स फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी. सबसे पहले हमने फाइंड कर लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू 2 minus 1 and 2. So we get it as 4 minus into plus 1 we have 4 minus 1 is 3, that is not equals to 0, so solution exists. Adjoint हमने फाइंड कर लेना किसका, C का, that is equals to changing position of the diagonals and signs of all other entities. Next what we have to do is finding A which is equals to C inverse and B. C inverse, what is C inverse? That is 1 by 3 a determinant adjoint and the matrix B 0 minus 3 8 3 3 minus 7. Now check if they are conformable for multiplication or not. We have here is 2 by 3. So the number of columns of matrix A is equals to the number of rows of the matrix B. So they are conformable for multiplication. So simply हम इसको multiply करते हैं and we get the answer 0 plus 3. अब मैं multiplication जो है वो खुद जल्दी जल्दी करूँगी ताकि क्योंकि अब आपको multiplication बहुत अच्छे से आती है. -6 plus 3 16 minus 7. Next is 0 plus 6 minus 3 plus 6 8 minus 14. So what we have is 1 by 3 3 6 minus 3 plus 3 16 minus 7 is 9 8 minus 14 is again minus 6. Simply जब हम इन सब को 3 से डिवाइड करते हैं so what we have is 1 minus 1 3 2 1 and minus 2. That is the matrix A, required matrix A. 1 minus 1 3 2 1 and minus 2. So let's see the last question of this exercise. We have two matrices, 3 by 3 matrices are going to multiply करना and the final answer we get is RI3 where I3 is identity matrix of order 3 by 3. 3 by 3 का identity matrix में क्या होगा, diagonals में 1 जो भी ऑर्डर का होगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें हमारे पास क्या होगा, डायगोनल्स पोजीशन पे 1 एंड ऑल अदर एंटिटीज आर 0. सो सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, दो दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन वी नॉट नीड एनीथिंग टू चेक. अब सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. व्हाट वी डू इज ये मेरा रो और ये हो गया कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. और cos 5 with cos 5 we have r cos 5 multiplied by cos of 5 plus 0 into 0 is 0 minus sin 5 minus is plus r sin 5 and sin 5. Okay. Next we have is next thing to multiply is this same row with this column. R cos 5 with 0 is 0. 0 with 1 is again 0. And minus sin 5 with 0 is again a 0. We have 3 zeros here. Next जो है वो हम नीचे अप्लाई कर लेते हैं ताकि जरा सिंप्लीफाई समझ आए हमें. r cos 5 with this sin 5 we have r cos of 5 sin of 5. Next 0 into 0 is 0 plus minus sin 5 and r cos 5. Okay.
0 into cos phi is 0 plus r into 0 is 0. 0 into minus r phi sin phi is 0. Next 0 into 0 is 0. R into 1 is r. 0. 0 into 0 is 0. Okay. Next 0 into sin phi is 0. R into 0 is 0. 0 into r cos phi is again a 0. Next r sin phi with cos phi. R sin phi cos phi plus 0 plus cos phi minus r sin phi. Okay. Next 0 plus 0 and again a 0. 0, 1 and 0, we have 0, 0 and 0. The next thing, last thing is r sin phi with sin phi is r sin phi sin phi. Next 0 plus cos phi r cos of phi. Okay. Next what we have another matrix, that is r cos phi into cos phi is r cos square phi plus r sin square phi. Here is 0 plus 0 is 0. R sin phi cos phi plus here is minus r sin phi cos phi. Next is 0, 0 and 0. The last column is r cos phi sin phi minus r sin phi cos phi. 0. The last column is r sin square phi plus r cos square phi. Plus minus cancel out, plus minus cancel out. What we have here is an r cos square phi plus sin square phi. 0, 1. 1 minus 1 is 1. 0, 0. Oh, sorry, we have an r here. We have an r here, not 0. Sorry, plus minus cancel, then we have a 0. यहाँ पे भी प्लस माइनस कैंसिल हो गए थे. ऊपर हमारे पास क्या हो गया था, r sin phi और cos sin phi कैंसिल हो गए. देन वी हैव अ 0. Here is again a 0 and here we have it r sin square phi plus cos square phi. यहाँ तक आपको मैट्रिक्स क्लियर होना चाहिए. मैट्रिक्स में हमने क्या किया, यहाँ से r कॉमन cos square phi plus sin square phi, 0 r and 0, ऊपर से प्लस माइनस r sin square phi plus r sin, जो लास्ट कॉलम था जो यहाँ पे कॉमन आ गया और यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर 0 हो गया. phi plus sin square phi is equals to 1. So simply by putting this we have r into 1, 0, 0, 0 r 0, 0, 0 r into 1. अब हमारे पास क्या है, डायगोनल पोजीशन में क्या है r, तो हम क्या कहेंगे, टेकिंग कॉमन r फ्रॉम डायगोनल. सारे डायगोनल्स में से हमने r कॉमन निकाला. देन व्हाट वी हैव इज 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So that is what we have to find Ri3, R with identity matrix of order 3. Let's see the other question. Question number 5 we are going to solve exercise 3.2. Previous question same थे इसलिए वो मैंने skip किए हैं. ये question थोड़ा सा चेंज था इसलिए इसकी एक साइड मैंने सॉल्व किया है और दूसरी मैंने आप खुद सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास क्या था, एयोटा की इन्वॉल्वमेंट थी, जस्ट बाकी सारा कुछ सेम है. 2x2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. तो 2x2 मैट्रिक्स को सिमिलर वे में हमने मल्टीप्लाई किया. एयोटा स्क्वायर, जहां जहां एयोटा स्क्वायर आया वहां पे उसकी वैल्यू पुट करते गए हम -1, और फिर उसके बाद जो ए बी का फाइनल आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद द थर्ड मैट्रिक्स सी. देन वी गेट द आंसर दिस. अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है वो ओवर टू यू है, यू सॉल्व देन
and if you find any difficulty, then you can ask me. So the next question we have A and B are the square matrices of the same order. A and B हमारे पास क्या है, square matrix है जिनका order same है, मतलब 2 by 2 है, 3 by 3 है, whatever the order is, it is the same of all the matrices A and B. अब हमने क्या करना, y in general. अब देखिए अगर हम सिंपल नंबर्स के केस में ये देखें तो हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर हमने पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है, लेकिन कह रहा है कि इन केस ऑफ मैट्रिसेस दिस इज नॉट पॉसिबल, वाई, एक्सप्लेन वाई. अब हम करके देखते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्यों ये राइट हैंड साइड नहीं आती. लेफ्ट हैंड साइड वी हैव इज a प्लस बी होल स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर एज a प्लस बी. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वी हैव a, पहले भी बताया है कि जब दो ब्रैकेट्स इस तरह से हों तो एक ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं और दूसरे को क्लोज रखते हुए मल्टीप्लाई करते हैं. सो सिमिलर वे में हमने इनको मल्टीप्लाई किया. वी हैव a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर. हियर वी हैव इज टू टर्म्स a b एंड b a, ए बी एंड बी ए. अब यहाँ पे ये चीजें अब हमने प्रीवियसली, अगर आपको लेक्चर्स आपने देखे हो, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, कि हमने पढ़ा था इन जनरल. बस इसको यहीं पे स्टेटमेंट में मेंशन करना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन जनरल वी नो दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, के ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे इफेक्ट पड़ता है. सो if when these are not equals, then AB plus AB plus BA जो है वो not equals to होंगे to AB. Since in general AB is not equals to BA, so AB plus BA is not equals to 2AB. जब ये 2AB के इक्विवेलेंट ही नहीं आएंगे तो ऑब्वियस है कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकेगी हमारे पास. सो वी हैव द फाइनल आंसर एज a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो सिमिलरली अगर हम इसको माइनस वाला देखते हैं, माइनस द सेकेंड पार्ट इज a माइनस बी होल स्क्वायर is not equals to a square minus 2ab plus b square. सिमिलर वे में है वो भी हमारे पास कि a minus b whole square is equals to a dot b, a minus b, b, a minus b. मल्टीप्लाई करें इनको, then what we have is a minus b minus b, a minus b. जब हम इनको सॉर्ट आउट करते हैं then what we have is again a square minus ab minus ba plus b square. अब minus ab and minus ba they are not equals to minus 2ab. Why? Because ab is not equals to ba. Same. That's why कि हमारे पास ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करती बी स्क्वायर के, जस्ट बिकॉज के ऑर्डर चेंज करने से मैट्रिसेस के आंसर पे इफेक्ट पड़ता है. हमेशा सेम मैट्रिक्स नहीं आते, कोई रेयर केसेस होते हैं जिसमें आंसर सेम आता है, अदरवाइज नॉट. The last thing we are going to prove is a plus b into a minus b is not equals to a square minus b square. Similar way में हमने मल्टीप्लाई किया. We all knows again that ab is not equals to ba. जब एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही नहीं है तो कैसे एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आंसर जीरो आएगा. तो ab माइनस ab प्लस ab जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है. जब ये दोनों टर्म्स जीरो नहीं होंगी then how can we obtain the edges like a square minus b square. So this these basic formulas of algebra does not apply on matrices. So now see the next question we have. A is equals to a matrix of order, it has 3 rows and 4 columns, it is of order 3 by 4. और हमें फाइंड करना है A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज ऑफ A. सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड किया. ट्रांसपोज इज व्हाट चेंजेस रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज. Then we change this column into a row, we get 2, 1, minus 3. Similarly, we have minus 1, 0, 5, 3, 4, 2, 0, minus 2, minus 1. So we
have the matrix of order 4 by 3. Now it has 4 rows and 3 columns. So simply अब हम देखते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले हमने देखना है कि ए ट्रांसपोज पॉसिबल है कि नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन सेटिस्फाई करनी है मल्टीप्लिकेशन की. तो लेट्स सी ए ट्रांसपोज पॉसिबल और नॉट. सबसे पहले देखते हैं ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास. जनरली देख लेते हैं. ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है 3/4 और ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर हमारे पास क्या है 4/3. तो कैसे चेक करना था हमने. इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए or matrix 1 is equivalent to the number of rows of the matrix B, then we say that product or multiplication is possible. तो सिंपली हमने चेक कर लिया मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं. तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन पर. स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. 2 into 2 is 4, -1 into -1 is +1, 3 into 3 is +9. Next is 0 into 0 is 0, plus we have 0. The next is same row with the other column we have 2 into 2 is 2, plus -1 into 0 is 0, 4 into 3 is +12, 2 into 0 is again 0. The next thing is 2 into 3 is -3 is -6, -1 into -5 is -5, 3 into 2 is +6, and then we have a 0. Next, plus 1 into 2 is 2, 0 into -1 is 0, 4 into 3 is 12, again next is 0. Next, 1 into 1 is 1, plus 0, plus 16 and plus 4. The next is -3 plus 0 plus 8 and plus 2. Next is 6 minus 5 plus 6 minus 0. The next thing is -3 plus 0 plus 8 plus 2. Similarly 9 plus 25 plus 4 plus 1. Simply अब इनको हम sort out करते हैं. We have it 4 plus 1 plus 9 is 14. 2 plus. So we have the final answer here. A transpose सिंप्लीफाई करके हमारे पर यह आंसर आया. अब नेक्स्ट हमने फाइंड किया A ट्रांसपोज A. सेम वे में ऑर्डर चेक किया. ऑर्डर बिकम फावरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. Let's see the other question number 9, that we have 3x minus 2a is equal to b. ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है. इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. हमने x फाइंड करना है is equal to b. x को सिंपल करते हैं. Then we have 3x is equal to b plus 2a. From here we have x is equal to 1/3 b plus 2a. So यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमें करना क्या है. हमें b को 2 को पहले एक कांस्टेंट नंबर स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देना 2 से. फिर उसके बाद b मैट्रिक्स को और a मैट्रिक्स को 2a मैट्रिक्स को ऐड अप करना है. Then we get the required answer. That is so simple to obtain. So we have 1/3 b. What is b? b is 2 minus 3 1 5 4 and -1. Next we have is plus 2 and A matrix is 2 3 minus 2 minus 1 1 and 5. By simplifying we have 1/3 2 5 as it is अभी लिखा जाएगा plus 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 minus 2 6 and 2 minus 4 and 10. जब हमने इनको ऐड किया then what we have is 4 plus 2 is 6 minus 3 plus 6 is 9 is 3 1 minus 4 is minus 3 5 minus 2 is again 3 4 plus 2 is 6 minus 1 plus 10 is 9. So simply अब 1/3 को हम सबसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. So we get the required answer, that is 2 1 1 2 -1 and 3. By multiplying everything with 3, divide everything with 3. तो हमारे पास आ गया फाइनल आंसर
कैपिटल एक्स की वैल्यू दैट इज 2, 1, -1, 1, 2 एंड 3. Let's see the next question. Let's see the next question. We have 2a, sorry, this matrix we have. अब देखें यहाँ पे भी अगर हम इसको नंबर्स देते हैं या अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, we have x a minus b is equals to c. तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से a. तो सिंपल हम अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या देगा, x a इज इक्वल टू सी प्लस बी. पहले हमें इसको इधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा. देन ए फाइंड करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा कि ये आपके पास x का इनवर्स सी प्लस बी. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का इनवर्स सी प्लस बी. तो हमने फाइंड करना है a. तो फाइंड करते हैं. सबसे पहले तो इनको इस तरफ लेके जाके ऐड करते हैं. 4, 2, 3 एंड 2. कैपिटल ए इज इक्वल्स टू -1, -4, 3 एंड 6 प्लस 2, 3, -1, -2. We have, by adding this, we have -1 plus 2 is +1, -4 plus 3 is -1, 3 minus 1 is 2, 6 minus 2 is 4. So अब हमारे पास ये आ गया मैट्रिक्स 4, 2, 3, 2. कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1, -1, 2 एंड 4. अब हमें ए फाइंड करना है, तो ये वाला मैट्रिक्स जो है वो इधर आ जाएगा. तो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, ये इस मैट्रिक्स को हमने क्या ले लेना है, अब इनवर्स लेना हमें आता है. प्रीवियसली हमने इसको मैट्रिक्स x का नाम दिया है, तो x का इनवर्स लेते हैं हम. x का इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ. नेक्स्ट जो है, हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया x का, चेंजिंग पोजीशन एंड चेंजिंग साइन. डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. सिमिलरली वी हैव 4, 3, 2 एंड 2. डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वी हैव 4 into 2 is 8, -6 we have 2 that is not equals to 0, so solution exists. अब हमने a फाइंड करना है, that is equals to x inverse of b. तो हमने अब x का इनवर्स लिया. x का इनवर्स हमारे पास b नहीं है यहाँ पे, वो क्या था हमारे पास c प्लस b. उनका जो सॉल्व करके आंसर आया था वो था. अब यहाँ पे आ गया 1/2, 2 -3 -2 एंड 4 विद. तो हमने क्या किया, एडजॉइंट फाइंड कर लिया, इनवर्स फाइंड किया, उसके बाद वैल्यूज पुट की. सिंपली उन दोनों वैल्यूज को अगेन बाय द सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई किया और फिर 2 के साथ सबको डिवाइड करके वी गेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए. सिमिलर लाइंस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 3/3 ऑर्डर डिस्कस करेंगे कि 3/3 में मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट, इनवर्स किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं. तब तक के लिए आप 2/2 मैट्रिक्स की जितनी हो सके उसकी प्रैक्टिस करें.